Hello learners, welcome back to my channel. So आज मैं पढ़वा B.Ed third semester book learning assessment. So आज मैं पढ़वा unit 3 tools of assessment. Unit 3 number 1 question, portfolios, meaning, types, purposes and guidelines assessing portfolios. So portfolio रो meaning, ता types, ता purpose कौन अछि, ता guidelines कौन अछि, ता विषय में पढ़िबा. And assessing portfolios का कहे ता विषय में हम पढ़िबा. So start करिबा. A portfolio is the collection of students' performance. It is the evidence of students' development. We can notice how much development has taken place by seeing portfolio. So पिलार जे परफॉर्मेंस अछि तार कलेक्शन कोटरे करा जाए ना पोर्टफोलियो रे. ठीक अछि. पिलार डेवलपमेंट रो एविडेंस हमें कोट पाइबा पोर्टफोलियो रो. एंड पोर्टफोलियो को देखिकी पिलाटा केते डेवलपमेंट करछि ता विषय में हमें जानि परिबा. Types of portfolios, developmental portfolios. Developmental portfolios are considered as work in progress. It includes self-assessment and feedback elements. So developmental portfolios कौन ना work in progress. ठीक अछि. And इटर कौन कौन included अछि ना self-assessment आउ feedback elements. Assessment portfolio. These are evaluate student performance in the end of the course. So course सरिया परे पिलाटार परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके assessment portfolio रे रखा जाए. Showcase portfolios. It is created to highlight the quality of students' work in the end of a program. So showcase portfolios कौन ना पिलारो जे वर्क ठीक अच्छे पिलारो परफॉर्मेंस रो क्वालिटी को किछि क्वालिटीज को हाईलाइट करा हुए. ठीक अच्छे जो प्रोग्राम टा सरी जाए तो कोर्स टा सरी जाए तार जो क्वालिटी अच्छी किछि क्वालिटीज को हाईलाइट करके जे आमे रखू सेटा होची शोकेस पोर्टफोलियो. ठीक अच्छे. शोकेस पोर्टफोलियो को क्रिएट ही एई पे करा जाए ताकि पिलारो जे क्वालिटीज अच्छी ताको हमें हाईलाइट कर परिबा. ठीक अच्छे. एंड शोकेस पोर्टफोलियो देखिले आमे तारो कौन कौन क्वालिटी अच्छी ताको इजीली आमे जानि परिबो. सो एटा थिला टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोस. ठीक अच्छे. देन पर्पस कौन ना टू शो डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, टू हाईलाइट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस. जहां हमें टाइप से पढ़लु ताको हमें लिख परिबा कि पिलाटार डेवलपमेंट केते अछि ता हमें जानि परिबा. पिलाटार जे प्रोग्रेस अछि तारो क्वालिटी अछि ताको हाईलाइट करा जाय थाए. एंड कोन तारो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके रखाय थाए. एटा होची तारो पर्पस. Then guidelines, identify the purpose, select the objective or aim, review the students performance. So first हमें ता purpose को identify करिबा, तापरे जा aim बा objective को select करिबा, तापरे review करिबा पिलारो performance को. Assessing portfolios कौन ना it is a method evaluation, it is a collection of students work. So पिलारो जे वर्क रो कलेक्शन पिलारो जे परफॉर्मेंस रो कलेक्शन हमें assessing portfolios रे करिथाउ. Number 2, assessment of cognitive learning, understanding and application, thinking skills, convergent, divergent, critical, problem solving and decision making. First, cognitive learning. So cognitive learning is a type of learning which encourages students to use their brain more efficiently or effectively. And when we learn something by using our brain, it is called cognitive learning. So इतला हमें किछि लर्न करू बाय यूजिंग आवर ब्रेन. आम ब्रेन को यूज करी हम किछि लर्न करू तो आम कौन कहू ना कॉग्निटिव लर्निंग. एटा गोटे एमिति लर्निंग जहाँकि एनकरेज करे पिला को ताकि से तार ब्रेन को मोर इफेक्टिवली यूज कर पारिबो. राइट. एप्लीकेशंस. This process influence learning. Individual control their own learning. So applications रे कौन ना application process हमें कौन पे यूज करू ताकि learning के और influence कर जाय परिबो. आउ कौन ना individual निजरो own learning को निजे control करि परिबो. Thinking skills. Thinking skills is a mental process. It helps to do things like ask question, make decisions, solve problems. It enable us to integrate our new information with old information. सो थिंकिंग स्किल्स गोटे मेंटल प्रोसेस आमे आपको यूज करी कौन कौन करि परिबा ना क्वेश्चन पचारि परिबा, डिसीजंस आमे निजे मेक करि परिबा और प्रॉब्लम्स आमे निजे सॉल्व कर परिबा. आउ कोन एटा हमको कोन एनेबल करूची एटा हमको कोन एनेबल करि पारुची कि आमे हमर जे न्यू इन्फॉर्मेशन अछि आ ओल्ड इन्फॉर्मेशन से तको हमें इंटीग्रेट कर परिबा. ठीक अछि.
जेमिति फॉर एग्जांपल गोटे पिलाटा अच्छी सान छुआटा से फर्स्ट टाइम गोटे काउ देखिला ठीक अच्छे सो नेक्स्ट टाइम जो से काउटा देखिबो से कौन से सांगे सांगे कहीदे पार कि एटा गोटे काउ से तार ओल्ड इनफॉरमेशन और न्यू इनफॉरमेशन इंटीग्रेट करिवो तापरे से कहि परिबो कि इट इज अ काउ सो एटा होची थिंकिंग स्किल्स. Then convergent thinking means the ability to give the correct answer. It is a valuable tool in situations where a clear definite solution is needed. Examples of convergent thinking होची solving math problems and answering MCQs. So convergent thinking माने कोन आम भीतर जे एबिलिटी अच्छी गोटे करेक्ट आंसर देबार राइट एटा गोटे वैल्यूएबल टूल होची प्रत्येक सिचुएशन रे आउ एमिति सिचुएशन जोठी आमको गोटे क्लियर सॉल्यूशन दरकार ठीक अच्छे से जगह रे कन्वर्जेंट थिंकिंग रो बहुत इंपोर्टेंट रोल अच्छी. सो कन्वर्जेंट थिंकिंग कौन कौन काम करे से मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिवो एमसीक्यूज आंसर करिवो ठीक अच्छे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तापरे कौन ना डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन ना डाइवर्जेंट थिंकिंग कैन गिव मल्टीपल आइडियाज ठीक अच्छे. डाइवर्जेंट थिंकिंग मल्टीपल आइडियाज दे पारिबो एंड इट इज यूज्ड इन सब्जेक्टिव मेथड. आपको हमें को मेथड यूज करू ना सब्जेक्टिव मेथड जेमती एसे ऑन लॉन्ग क्वेश्चन ठीक अच्छे. इफ अ चाइल्ड इज गिवन एन एसे टू राइट देन हिज राइटिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. सो आम गोटे पिला को एसे देलु लेखिया पई ठीक अच्छे. धरन तुम 5टा पिला को एसे देलु लेखिया पई वाटर पोल्यूशन उपरे सो समस्त लेखा सेम थिबो समस्त डाइवर्जेंट थिंकिंग अलग समस्त थिंकिंग ही अलग राइट. तो समस्त इंट्रोडक्शन सेम रही कि पैराग्राफ सेम रही कि कंक्लूजन सेम रही समस्त डिफर कर टू इच अदर. सो एटा ही कहुची. सो डाइवर्जेंट थिंकिंग रो एलिमेंट्स कौन ना क्यूरियोसिटी फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी ओके. Then critical thinking कौन ना critical thinking is the ability to think clearly and to know what to do and what not to do. So critical thinking is very important. आम भीतर जे एबिलिटी अच्छी कि आम गोटे जिनस को क्लीयरली भाभी पारुचे आम को से बुझा पड़ुची कि हाँ ये जिनसा करवा उचित ये जिनसा करवा उचित नुहे ठीक अच्छे. टू अंडरस्टैंड टू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ताको आम कौन कहू ना क्रिटिकल थिंकिंग. सो क्रिटिकल थिंकिंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन अच्छी. अंडरस्टैंड कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज डिटेक्ट मिस्टेक्स सॉल्व प्रॉब्लम्स इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी सेल्फ इवैल्यूएशन इट इज क्रूशियल फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इट डेवलप्स लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. Thus critical thinkers will identify analyze solve problem systematically. So first कौन जे आइडियाज भितर जे कनेक्शंस अच्छी ताको हमें बुझी पारिबा आमे कौन कौन मिस्टेक करछो ताको हमें डिटेक्ट करि पारिबा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करि पारिबा ठीक अछि. आउ कौन एटा कौन प्रमोट करूची क्रिएटिविटी को प्रमोट करूची सेल्फ इवैल्यूएशन को प्रमोट करूची आउ कौन एटा क्रूशियल को पाई सेल्फ रिफ्लेक्शन पाई ठीक अच्छे. आउ कौन आमर लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन स्किल्स एगुड़ा डेवलप कर हेल्प करुची. सो क्रिटिकल थिंकर्स विल आइडेंटिफाई एनालाइज सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली. जो क्रिटिकल थिंकर्स थांती से किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करदे एनालाइज करदे देन ताकू जितने से सॉल्व करेंगे सिस्टमैटिकली ही सॉल्व कर पारे ठीक अच्छे. तापर कौन ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन ना प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट इश्यूज. प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन ना एटा गोटे प्रोसेस किछटा स्टेप्स अच्छी ताको हमें यूज करिकी किछि गोटे प्रॉब्लम अच्छी किसी गोटे इश्यू अच्छी ताको हमें सॉल्यूशन करि परिबा ताको हमें सॉल्व करि परिबा. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट इश्यूज. वेरी इजी. Steps कौन identify the problem find the causes of the problem and find the possible solution and implement the solution. First हमें कौन problem अच्छी तो हमें identify कर देलु तापरे से problem कौन पाई हैला तार कौन सब cause अच्छी ताको हमें खोजिबु फाइंड करिबु तापरे से प्रॉब्लम को सॉल्व करिबारे कौन कौन हमें कौन कौन सॉल्यूशन हे परिबा से पॉसिबल सॉल्यूशंस को खोजिबु खोजिया परे से जे सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करिबु देन हमरो डिफिकल्ट इश्यूटा सॉल्व हो जाबो अंडरस्टूड. तापरे कौन डिसीजन मेकिंग
So decision making is the daily activity for any human being. It is a choice. It involves choosing between two or more possible solutions to a problem. So decision making गोटे daily activity. हमें daily किसी ना किसी decision make करू ही थाउ, right? So एटा गोटे choice. ठीक अच्छे. आउ कौन? It involves choosing between two or more possible solution to a problem. किसी गोटे problem ही ची. सो सेटा केमती सॉल्व करबा हम मुंडरे 2 रु 3 4 5 टा सॉल्यूशंस आसे. सो हमको ता भीतर गोटे चूज करिकि ताको हमें इम्प्लीमेंट करू. ठीक अछि. तापरे कौन ता स्टेप्स कौन अच्छी ना आइडेंटिफाई द डिसीजन, गैदर इन्फॉर्मेशन, जनरेट, इवैल्यूएट, चूज द अल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन एंड मॉनिटर. फर्स्ट हमें कौन डिसीजन नेबा आइडेंटिफाई कर दबा से तार सॉल्यूशन कौन कौन हे परिबो ता पई इन्फॉर्मेशन गैदर करिकि जनरेट, इवैल्यूएट, चूज करबा अल्टरनेटिव्स को, देन इम्प्लीमेंट करबा सॉल्यूशन, देन मॉनिटर. ठीक अछि. नंबर 3 क्वेश्चन आसीबा सिलेक्टेड रेस्पॉन्स असेसमेंट जोड़े मल्टीपल चॉइस, बाइनरी चॉइस और मैचिंग अच्छी. कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स असेसमेंट जोड़े कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर एंड एसे आइटम्स अच्छी. सो एक्चुअली ए यूनिट टिके बड़ अच्छी. एक्चुअली असेसमेंट रो जिते भी यूनिट अच्छी सेटार क्वेश्चंस गुड़ा टिके बड़ बड़ अच्छी. बट नो इश्यू, बहुत सिंपल वे रे लिखी एंड आपण इजीली कर दे पारिबे. Okay, so selected response assessments are a valuable tool. एटा गोटे बहुत valuable tool. ठीक अछि. Students select correct answer from a list of options. So पिला माने को गोटे क्वेश्चन दिया गला किछि ऑप्शंस दिया जेबा ता भितर से सिलेक्ट करबा गोटे आंसर ताको जेमति फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस, बाइनरी चॉइस एंड मैचिंग. मल्टीपल चॉइस रे कोन चारटा ऑप्शन रहबो, बाइनरी रे दीटा, मैचिंग रे आपण कॉलम 1 रहिबो, एठी किछिटा रहिबो, कॉलम 2 रहिबो, एठी किछटा रहिबो. तो आपण आसो एटा मैच करबो, आसो एटा मैच करबो, आसो एटा मैच करबो, एमति थाए. ओके. सो मल्टीपल चॉइस कोन ना इट प्रोवाइड्स 4 ऑप्शंस. इट इज अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट, क्विक एंड सिंपल टू आंसर एंड मोबाइल फ्रेंडली एंड टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट. सो मल्टीपल चॉइस रे चारटा ऑप्शन अछि आ एटा गोटे असेसमेंट रो गोटे फॉर्म. एटा बहुत क्विक और सिंपल टू आंसर. ठीक अच्छे. और मोबाइल फ्रेंडली आपण मन कोरोना टाइम रे हमें बाय फोन एग्जाम्स दोथलु थ्रू एमसीक्यूज एंड एटा बहुत टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट. आपको क्रिएट करबा पे बहुत टाइम लागे. ओके. Binary choice provides 2 options. It includes true, false, yes, no, correct, incorrect. So binary choice रे मात्र 2 ऑप्शन दिया हबो. ठीक अछि. तमे गोटे क्वेश्चन दिया गला डू यू लाइक कार, यस और नो. ठीक अच्छे. या फिर ट्रू फॉल्स रे केमती कि आपणकर गोटे क्वेश्चन धरतु ह्यूमन इज अ लिविंग बीइंग. सो एटा ट्रू या फॉल्स, ट्रू. सो अपन ट्रू चूज करेंगे. तापर सेमती करेक्ट इनकरेक्ट थाए. सो एटा होची 2टा ऑप्शन वाला. देन टाइप्स रे कोन अछि आरो वर्बल चॉइस, विजुअल चॉइस एंड एक्शन चॉइस. वर्बल रे केमती डू यू वांट कार और बाइक, ताको पचरा हला तुमको कार दरकार ना बाइक दरकार. विजुअल रे कोन ताको देखा जीवो, ताको 2टा जिंस देखा हबो कि टॉय कार देखो गोटे टेडी देखो, चूज करो कोटा नबो. एक्शन चॉइस रे कोन ताको पचरा गला गोटे फिजिकल वर्क पई कि तमे चालिबा को पसंद करबो ना दौड़ीबा को, डू यू वांट टू वॉक और रन. मैचिंग रे कोन 2टा कॉलम थिबो जेटा मु कहली इट इज इजी टू स्कोर, इट इज वेरी यूजफुल. सो इटार आपण मैचिंग जेतले करूछन्ते एमते लेखिबा आपण एठी तार एग्जांपल भी दे पारिबे, डायग्राम भी बनै दे पारिबे. ठीक अछि. एठी कॉलम 1 लिख देबे, कॉलम 1 लिख दी पारिबे. देन एठी 2-3टा लिख देबे. देन कॉलम 2 देखि एठी 2-3टा लिख देबे. देन यू कैन डू दिस. ठीक अछि. एटा भी आपण कर दे पारिबे. Selected response गला. एबे constructed response. Constructed response assessment are written assessments which include short response items, completion, short answer and essay items. So completion kono, completion items are similar to multiple choice questions without distractors and it can be constructed more quickly than multi choice items. So completion items कोन ना very similar to multiple choice questions किंतु सेटा distractors न थाए and एटा construct करा जे परिबो more quickly than the multiple choice items. Okay. तापरे कोन ना short answer. The short answer item uses the constructed response format.
it can be used for both formative and summative assessment. So short answer कौन ना इटा होची गोटे आइटम जोटा कि यूज करा जाए फॉर कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स फॉर्मेट आउ एटा हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट हो बा समेटिव असेसमेंट दीटा रे हमें को यूज कर पाइबा. Essay items are best for measuring students cognitive abilities. It is used to develop student writing skills. So essay items को हमें कौन पर यूज करूँ ताकि हमें छुआर कॉग्निटिव एबिलिटी केते अछि तो हमें मेजर कर परिबा आउ कोन आकु यूज करा जाए ताकि पिल्लार जे राइटिंग स्किल्स अछि ताको हमें डेवलप कर दे परिबा. Assessment of performance, project based assessment using rubrics to grade a performance based assessment. So first हम पढ़िबा performance assessment तापरे project based assessment तापरे rubrics उपरे ठीक अछि. So performance assessment कौन in performance assessment students perform a task and based on their performance student skills are measured. Advantages कौन अछि ना promoting active learning, providing a deeper understanding, encourage students and engaging. Disadvantage कौन ना time consuming, costly and limited scope. So in performance assessment कौन हुए गोटे पिलाटा गोटे टास्क दिया गला ठीक अच्छे पिलाटा गोटे टास्क को परफॉर्म करला से टास्क रे जे परफॉर्मेंस से देला ताकू बेस करिकी पिलार जे स्किल्स अछि ताकू मेजर करा हुए. ओके सेटा होची परफॉर्मेंस असेसमेंट. एडवांटेजेस कौन कौन अच्छी ना एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करे, डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे, पिलाटा को एनकरेज करे आ एंगेज करे ठीक अच्छे टास्क रे आ कौन एटा बहुत टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली आ तार स्कोप हो बहुत लिमिटेड. प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. सो प्रोजेक्ट असेसमेंट आमको अपॉर्चुनिटी दिए ताकि पिलाटा जहाँ भी से लर्न करिछि ताकू से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम रे तार रियल लाइफ प्रॉब्लम रे ताकू ऐड करिकी तार सॉल्यूशन कर दे पारथुबो ठीक अछि. तो से जहाँ भी सिखिला प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट रू ताकू से यूज करिवो ताकि से रियल लाइफ रो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे पारिबो. तापरे कोन एडवांटेजेस स्टूडेंट सेंटेड अछि पिला मन को एनकरेज करे, एक्टिव लर्निंग अछि, स्टूडेंट एंगेजमेंट थाए आ कोन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आ इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग. डिसएडवांटेज कोन ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग, इकोनॉमिकल भी नुहे ठीक अछि. एंड इन कंक्लूजन कोन प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट ऑफर करूची गोटे पावरफुल वे ताकि पिला माने एंगेज हे पारिबे गोटे मीनिंगफुल लर्निंग रे ठीक अछि. सो एटा थला यूनिट 3 ऑफ लर्निंग असेसमेंट. सो जदि आपको वीडियोटा भल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं. एंड नेक्स्ट वीडियो आप को टॉपिक रे चाहउछंती ताको आपण कमेंट रे जणाई दी परिबे. थैंक यू.